की जी की जी की हर कथा उत्तम कथा उत्तम नीकी दीकी हर कथा उत्तम नीकी दीकी हर कथा उत्तम नीकी दीकी हर कथा उत्तम
भिखारी निरारी अपारी सजारी, भिखारी निरारी अपारी सजारी, साध संग नानक पी की रे, साध संग नानक पी की रे, भिखारी निरारी अपारी सजारी, भिखारी निरारी अपारी सजारी, साध संग नानक पी की रे, साध संग नानक पी की रे, साध संग नानक पी की रे, नीकी नीकी हरि कथा उत्तम, 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 आन सगल रस पी की रे, आन सगल रस पी की रे, नीकी नीकी हरि कथा उत्तम। बहु गुण तुम गुण जन खट बेते, बहु गुण तुम गुण जन खट बेते, हवर न किछ लाई की रे, हवर न किछ लाई की रे, भिखारी निरारी अपारी सजारी, भिखारी निरारी अपारी सजारी, साध संग नानक पी की रे, साध संग नानक पी की रे, साध नानक पी की रे, साध संग नानक पी की रे, नीकी नीकी हरि कथा उत्तम, नीकी नीकी हरि कथा उत्तम, आन सगल रस पी की रे, आन सगल रस पी की रे, नीकी नीकी हरि कथा उत्तम, नीकी नीकी हरि कथा उत्तम, नीकी नीकी हरि कथा उत्तम, आन सगल रस पी की रे, आन सगल रस पी की रे, आन सगल रस पी की रे। रहा जो ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 404 ਭਾਵ 404 ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਪਿਵਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਹਾਉ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੈਂਸ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ, ਰਹਾਉ ਮੀਨਸ ਪੌਜ਼। ਪੌਜ਼ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਰਹਾਉ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਫ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ ਨੀਕੀ ਜੀ ਕੀ, ਹਰ ਕਥਾ ਉੱਤਮ, ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ ਫੀਕੀ ਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਆਨ, ਅਵਰ, ਹੋਰ, ਬਿਡਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਨ ਅਵਰ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨੀਕੀ। ਨੀਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ, ਦ ਬੈਸਟ। ਨੀਕਾ ਮੀਨਸ ਚੰਗਾ, ਨੀਕੀ ਮੀਨਸ ਚੰਗੀ। ਨੀਕੀ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਉੱਤਮ। ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਕਾਈ 'ਤੇ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
लेकिन अज दे शब्द विच उसनूं जी कहा है। इंग्लिश विच असीं उसनूं कॉन्शियस कह सकते हैं कि रब तेरी कॉन्शियस विच वसदा है। कॉन्शियस नूं असीं रूह भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, ज़मीर भी कह सकते हैं, विल की आवाज़ भी कह सकते हैं, अपने अंतरात्मे की आवाज़ भी कह सकते हैं। गुरु पातशाह अज दे शब्द विच कह रहे हैं, नीकी जी की तेरे अंदर वसदे रब जी की जिहड़ी तेरी अंदर दी दिल की गल होंदी है ना, वो चंगी होंदी है, वो रब जी की होंदी है। इसदा मतलब अंदर की आवाज़ सुनिया कर। साध संगत जी, कईयां ने मैनू सवाल किया कि मेरे अंदर की आवाज़ है कि शराब पी लो। किसी ने सवाल पूछा मेरे अंदर की आवाज़ है किसी का बुरा कर लवो। किसी ने कहा मेरे अंदर की आवाज़ है कि किसी के पैसे लैके मुकर जाओ। साध संगत जी, इनू अंदर की आवाज़ नहीं कहते, ये मन की आवाज़ है। एनी नेगेटिव, एनी डिस्ट्रक्टिव, एनी बुरा ख्याल रब जी का ख्याल नहीं है। गुरमति रब जी करता पुरख का कॉन्सैप्ट है, क्रिएटिव का है, उसारू का है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, एलिवेशन का है, सानू पकड़ के खड़ा करन जोगा है। गुरबाह पकड़ प्रभ काढ़िया। बाह पकड़ गुर सेवा लाए सोई उतरिया पार। गुरु पातशाह बाह पकड़ के मैनू खड़ा कर देंदे ने, मानो मैनू आत्मक तौर पर एलीवेट कर देंदे ने। वो जिहड़ी गल अंदरों साडे आंदी है वो दरअसल चंगे वाली ही होंदी है, लेकिन सानू बचपन तो इग्नोरेंस करके मेरे आस पास जिहड़े सारे लोकी रहिंदे ने उन्हां दा मिसबिहेवियर देख के मैनू इस तरह चंगा लगन लग पवा भी जिहड़ा पैड़ा ख्याल आए उसकी प्रैक्टिस करो। ਉਹਦੀ प्रैक्टिस करन वेले अंदरों आवाज आती है एक काम चंगा नहीं, बट आई लाइक टू कमिट, आई लाइक टू प्ले द ईवल्स। मैनू वो चंगे लगते हैं। इस करके मेरा सुभाव चों भी इंग्लिश कहांगे मेरा एटीट्यूड बिगड़ जाता है। एटीट्यूड गुरु फिक्स करता है। गुरु और रब गुरबाणी इको मैने च आया। रब मीनस गुरु, गुरु मीनस रब। रब जी अंदर वसदे ने, मानो सतगुरु अंदर वसदा है। अंदर की जिहड़ी आवाज़ होंदा वो पक्की बाणी होंदी है, वो धुर की बाणी होंदी है, लेकिन जिहड़ी मन की आवाज़ होंदी है वो कच्ची बाणी होंदी है। गुरु पातशाह कहते हैं रहाओ विच, नीकी जी की हर कथा उत्तम। वो उत्तम है, वो बेटर है, वो बेस्ट है, मोस्ट एक्सक्लूसिव है, फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। नीकी जी की हर कथा उत्तम। हर कथा विच कहानियां नहीं होंदियां। ये गल वखरी है कि साडे सिख जगत विच आदत पै गई है कहण दी, अज फलाणे सिंह साहब कथा करनगे। कथा कोई नहीं कर सकता। हर कथा तो सुन रहे मन कित्थों सीखांगे। दुनिया दे पाने वोकैबलरी विच कथा दा मैना समझा जाता है। कौन कदों पैदा होया सी, कौन कदों मरिया सी, किस अवतार ने कदों जन्म लिया, वो धरती तो कदों चला गया, उहदे वोटी बच्चियां नाल की होया, उन्होंने की प्रॉब्लम्स फेस करनियां पईयां, उहदा की हाल बने, उहदी पूरी स्टोरी नूं डिस्कस करना दुनिया रब जी की कथा समझदी है। बट रब जी ना जमते ने ना मरते ने, अजूनी ने।
अकाल मूरत ने। रब जी के माता पिता कोई नहीं ने। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। सारे ही एक पिता एक के मुबारक वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड को कबीरे राम की अंश। असी सारे ही इको DNA की उपज हाँ जिसनों असी कह सकते हैं कि असी सारे ही रब जी के बच्चे हाँ। सो गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी के अंदर रब जी की कथा नहीं हो सकती। हर कथा तो सुन रहे मन का मतलब अल्टीमेटली जाके निकलेगा कि रब जी के कंपैरिजन रब्बी गुणा के कंपैरिजन तेरा मन की कहता है। इस एनालिसिस नू, इस इंट्रोस्पैक्शन नू समझण दा यतन कर। सो रब जी की कथा नहीं हो सकती। इन सांझ कर सकते हैं कि अज के प्रोग्राम विच फलाणे सज्जन शब्द विचार सांझ करन दा यतन करनगे, लेकिन कथा कोई नहीं कर सकता। ते असी किसी नूं मोड़ नहीं सकते भी अनाउंसमेंट ना करिया करो। पर जिस कथा नूं सुन के मेरे मन की अनस्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, मेरा मन डावाडोल जिहड़ा रहिंदा है, भैड़े ख्यालों के कारण अस्थिर रहिंदा है, उसनूं टिका आ जाए। वो कथा मीनस वो वाला मैसेज, मीनस वो वाला डिवाइन मैसेज, वो वाली स्पिरिचुअलिटी दी प्रीचिंग्स का एसेंस जिहड़ा है ना, उन्होंने हर कथा कहते हैं। नीकी जी की हर कथा उत्तम। अंदरों जिहड़ी रब जी दी तेरी जमीर दी रूह दी आवाज़ आती है ना, वो उत्तम है, उन्होंने सुनना सीख। असी नहीं सीखते हैं क्योंकि सानू भैड़े ख्याल, भैड़ियाँ आदतां, मेरा एटीट्यूड चंगा लगता है, मैं उन्होंने नहीं छोड़ना चाहता हाँ। जो मेरे भैड़े ख्याल और भैड़ियाँ आदतां ने उन्हां दे नाल मेरी अटैचमेंट है, उस मत की अटैचमेंट नूं मोह कहंदे ने। गुरबाणी विच माँ दा पुत्र नाल, माँ प्यो दा बच्चियां नाल जिहड़ा मोह है वो त्यागन वास्ते मना नहीं किया गया। रादर जो भैड़े ख्यालों की आदतां ने उन्हां दे नाल अटैचमेंट के मोह नूं छड्डण बारे कहा गया है। जदों भी काम क्रोध मोह कर आएगा उहदे विच मोह का मतलब अपने भैड़े ख्यालों की मत दे नाल मोह ना करिया कर। भैड़े ख्याल मन की आवाज़ है, मन नूं अकल नहीं है। मन मंदे फुरने मंदे मैसेजिस देंदा है। उन्होंने आन कहते हैं, अवरा कहते हैं, जम कहते हैं, डीमन थॉट्स कहते हैं, उन्होंने बिडाणी आस कहते हैं। तारजी जेड़े एक टिक तू लाए बिडाणी आस। बिडाणी मीनस मन के ख्यालों वाली आवाज़। कुछ साल पहला मैनू किसी ने पूछा, वीर जी असी डिफरेंशिएट किवें करिए कि अंदरों जिहड़ी मेरी आवाज़ आ रही है रब जी की आवाज़ आ रही है या मन की आवाज़ आ रही है। तो मैं सिंपल एग्जाम्पल शेयर किया। फर्ज करो मैं अपने घर तो काम पर जाता हाँ, मेरा काम पर जाना ज़रूरी है, मेरा काम पर पहुँचना टाइम सिर ज़रूरी है और मैं अपने टाइम पर निकल रहा। लेकिन मेरी स्ट्रीट अक्रॉस द स्ट्रीट मैं देखा एक माता जी सड़क पार करना चाहते हैं, या एक लोड़वंद माँ नूं पानी के गिलास की जरूरत है, या कोई सड़क पर टै पिया उन्होंने हॉस्पिटल ले जाना है। जे तो मैनूं अंदरों आवाज़ आती है कि इन्हों पानी दे दिओ, इन्हों सड़क पार करा दिओ, ये माता जी तेरे माता जी ही हैं, इन्हां दी हेल्प कर दे। जदों इस तरीके के काइंड हार्ट वाला अंदरों सुनिया आवे और रब जी की आवाज़ है। पर जे अंदरों आए ओए रोज़ कोई ना कोई माता जी सड़क पर मिल जाएंगे, तू काम ते जाएगा ही नहीं, छोड़, इग्नोर दिस माता जी, इग्नोर दिस चैरिटी वर्क, डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ। बड़ी मुश्किल ते जॉब मिली है, अपना टाइम ते काम ते पहुँचो। साडे माँ प्यो ही कहते हैं, वो टाइम सिर सोवो, टाइम सिर उठो, दुनिया की सेवा ना लगे रहो।
पर गुरु सिखांदा हाउ टू लिव फॉर अदर्स। जिस नूं लिव फॉर अदर समझ आ जाता है, उन्होंने अपनी सस नहीं लगती, माँ ही लगती है। जिस सस नूं यह गल समझ आ जाती है लिव फॉर अदर्स, वो किसी की नूं अपनी बच्ची बना के पराई बच्ची नहीं समझती। इस तरह ही पति पत्नी बच्चे सब जगह साढ़े चारों पासे अंदर दी आवाज़ रब जी की आवाज़ होंदी है, और वो काइंड मैसेज ही होंदा है, वो डिवाइन मैसेज ही होंदा, वो आइडियल ही होंदा। दैट इज़ कॉल्ड मॉरल्स, दैट इज़ कॉल्ड वर्च्यूज़। जेड़ा ख्याल पैड़ा आवे, जेड़ा डिस्ट्रक्टिव आवे, जेड़ा माड़ा आवे, जेड़ा किसी का विगाड़ करने वाला आवे, वो मन की मत होंदी है। वो गुरु पातशाह कहते ने आम सगल रस फीकी रे, उहदे विच रस नहीं होंदा। डिस्ट्रक्टिव मैसेजेस रस नहीं होंदा, फिक्के होंदे ने। यू वोंट बी प्लीज्ड, यू वोंट बी एट पीस। इस करके अंदर दी कथा सुननी सीख, वो नीकी है। ये शब्द का रहा हुआ है, उन्होंने सुनना सीखदियां ते उहदे नाल फायदा की होंदा है। पदा पहला बहु गुण, बहु होंदा है इनफिनिट चंगे चंगे गुण। मेरी ईगो की निशानी की होएगी? मेरी ईगो की निशानी होएगी वो वीर जी मन साफ होना चाहिए, ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए, अपने गुट्टी बच्चे पालने चाहिए ने, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। दैट्स इट। धर्म करने की लोड़ की है? पाठ करने की लोड़ की है? गुरुद्वारे जाने की लोड़ है? अमृत छकन की लोड़ है? असीं इस तरीके नाल गल्लां करते हैं। 2 या 3 पॉइंट गिने, वो भी पता नहीं मैं प्रैक्टिस करता कि नहीं करता। 2-3 पॉइंट गिन के पूरा धर्म अपना लिया जी असी, और क्लेम करना शुरू कर दिता मैं ते धर्मी हाँ। फिर कईयां नूं यह भुलेखा हो जाता है, केस रखने चाहिए ने, मैं रखे हुए ने, कड़ा पाना चाहिए मैं पाया है, 5 ककार मैं पाए हुए ने, अमृत वेले उठना चाहिए, नितनेम करना चाहिए, गुरुद्वारे जाना चाहिए, वो मैं करता ही हाँ। हुण मैनूं कुछ सीखण की लोड़ ही की है? आई एम ऑलरेडी परफेक्ट। अपने आप को क्वालीफाइड ही नहीं कर लिया, अपने आप को परफेक्ट समझ लिया। इनू कहते हैं साडी ईगो। गुरुद्वारे जाइए प्रबंधकों के नुक्स कटते रहिए, भाई साहब जी के, ग्रंथी जी के, सेवादार जी के, लोगों के नुक्स कटते रहिए। कारपेट साफ नहीं किया, चंदोआ ठीक नहीं लाया, कड़ा प्रसाद ठीक नहीं बनाया, आज किस नूं बुला लिया, बका सिर भोग नहीं पाया, कड़ी ही देखते रहते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर एस्केपिज्म। मैं अज गुरुद्वारे आया, मैं सतगुर की गल सुनना चाहता। सतगुर मैनू हैल्प करता है हाउ टू बी इंट्रोस्पेक्टिव। अपनी इंट्रोस्पेक्शन करना गुरमत अनुसार भगती है रब जी की। हर का बिलोवना बिलोव, मेरे भाई शब्द कहते हैं, हर का बिलोवना मन का विचार। तो अपनी विचार कर लिया कर, यह रब जी की भक्ति है। फरीदा जेतु अकल लतीफ काले लिखना लेख, आप लड़ा गिरबान में सिर नीवा कर वेख, अपनी पछाण करिया कर। डोंट ट्राई टू जज अदर्स। पति पत्नी नूं कहता जा जा, मैं तेनों 35 साल तो तेरे नाल विआह होया है, मैं जानदा तेनों, तेरे पेकिਆਂ नूं भी जानदा, तेरे भरा नूं भी जानदा, लेकिन अपने आप नूं नहीं जानदा। पत्नी भी कह रही होंदी है जाओ जाओ, मैं तुहानूं जानदी हां, तुहाडे दादे लक्कड़ दादिਆਂ नूं मैं जानदी हां। दे डोंट वांट टू चेंज। कोई गुण वो लेना ही नहीं चाहते, सिर्फ एक लावा ले लिया, खरीद लिया। अब कैदी की तरह मेरे पास बैठे रहो और हिलना जुलना मत। एक दूजे वास्ते स्पेस नहीं छोड़ते हाँ, रूम नहीं छोड़ते हाँ। आप आत्मक तौर पर आज़ाद नहीं होंगे, दूजे नूं आत्मक तौर पर आज़ादी लैण नहीं देंदे। इस करके विआह दे नां हेठां असीं जेल खाना बना लिया। चंगे गुण सीखने सी, इहदा नाम है आनंद कारज। आनंद कारज विच विआह कराउण तो बाद आनंद आना चाहिए सी। आनंद आंदा है जदों दोनों मिल के सच की संगत करते हैं, तां आनंद आना शुरू होएगा।
जे दोनों मिलके लड़ना शुरू करन उन्हों कुसंगत कहते ने। जदों दोनों लड़ते ने वो फेक रैसलिंग नहीं होंदी, वो रियलिटी च लड़ रहे होंदे ने। वो वाकई अपने घर विच कुसंगत कर लेंदे हन एंड दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट ईच अदर। दैट इज कॉल्ड इमोशनल ब्लैकमेल। गुरु पातशाह कहते ने जे अंदर की कथा सुने उहदे नाल बहु गुण तैनूं बेअंत चंगे चंगे गुण सीखण नूं मिलणगे। बहु गुण धुन मुन, मुन का मतलब होता है स्टेबल अवस्था। मुन बारे गुरु पातशाह कहते हैं सो मुन जो मन की दुविधा मारे। जदों मैं स्टेबल नहीं हाँ तो मैं इधर जावां कि इधर जावां कन्फ्यूजड होंदा हाँ, पर जदों मेरा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए उन्होंने मुन अवस्था कहते हैं। मुनी कोई इंसान नहीं होंदा। मुन मन की स्टेबल अवस्था। पंडित कोई इंसान नहीं होता। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, जो भी इंसान अपने मन नूं एनालाइज करके ईवल्स वालों रोक लेंदा है, पंडित अवस्था। दुनिया का कोई भी मनुख पंडित हो सकता है। जो अपने आप नूं रब दे नाल लगातार इकमिक अनइंटरप्टेड जोड़ सके वो जोगी होंदा है। अवस्था। बहुगुण धुन, धुन मीनस मीनस हमेशा ट्यून्ड रहना विजडम दे नाल ये अवस्था प्राप्त होती है। यू डोंट हैव टू कंसनट्रेट, यू डोंट हैव टू मेडिटेट, यू डोंट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर चौकड़ा मार के पोस्चर, यू डोंट हैव टू रिनाउंस एनीथिंग, ओनली सुरत करके जागते रहना। बहुगुण धुन मुन जन खट बेते। खट होंदा है छे। छे का मतलब गुरबाणी अनुसार होंदा है मेरे जेड़े अख नक कन ये सारे जेड़े मेरे ऑर्गनस ने, ये 5 ऑर्गन ते इन्हां दे नाल मेरा मन। इन्हां नूं जदों असी अपने जीवन विच जींदे हाँ तां असी अपने अंदरले नूं पछाण जांदे हां। अंदरले नूं पछाण जाना, ब्रह्म अवस्था नूं पछाण जाना, अंदर दे ब्रह्म नूं पछाण जाना बेते कहलाता है। बहुगुण धुन मुन जन खट बेते अवर न किछ लाई की रे। फिर होर कुछ भी उहदे इक्वल नहीं लगता। सब तो अच्छी स्पिरिचुअलिटी की कथा लगती है, सब तो अच्छी सतगुर की मत दियां गल्लां अच्छियां लगदियां, बाणी मिठी लगती है। वर्च्यूज दे नाल जीण दी ताकत बढ़ती है। वन इज इंस्पायर्ड टू बी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, अदरवाइज वी आर नेवर इंस्पायर्ड। तुसी टीवी देख लो, यू वोंट बी इंस्पायर्ड टू बी ए स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। अखबारां पढ़ लो, लोकां नाल बैठ के गल कर लो। तुसी जदों भी लाइक माइंडेड लोकां नाल बैठोगे तो लाइक माइंडेड बैठ के भी आपस में स्पिरिचुअलिटी दी, परसनल एलिवेशन दी, अपने आचरण नूं उच्चा करन दी गल नहीं करनगे। वो किसी होरां दियां निंदा दियां गल्लां करनगे। फलाने भैड़े ने, फलाने कर्म कांड करते ने, फलाना ग्रुप, फलाना धड़ा, फलाने लोकी, फलाना धर्म, फलाने स्टेटस वाले, फलानी बरादरी वाले, फलानी कंट्री वाले। दे वोंट टॉक अबाउट पर्सनल एलिवेशंस। इनू कुसंगति ते कहंदे ने। लेकिन प्रायोरिटी बन जाए कि मैनू रब्बी गुणा दे नाल जीना है, उन्होंने होर कुछ दे इक्वल नहीं लगता। अवर ना किछ लाई की रे। मैं याद है आज तो 20 साल पहला, आफ्टर मैनी ईयर्स जदों मैं अमेरिका तो इंडिया आया तो असी सैमीनार्स करने शुरू किए गुरबाणी दे। सैमीनार्स वास्ते कुछ सज्जन मेरे नाल मिल गए।
ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CDs ਔਰ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਟੇਪਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੜਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਪੋਲਿਸ਼ ਦ ਸਿਸਟਮ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਡਾਈਟ ਅਵਰ ਸਪੀਡ ਔਰ ਵਰਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਛਿੜ ਪਈ। And we kept on talking for more than 40 or 50 minutes. ਅਸੀਂ 40-50 ਮਿੰਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। And I was shocked ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਕਾਲ ਅਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਵਰ ਨਾ ਕਿਛ ਲਾਇਕੀ ਰੇ, ਬਹੁ ਗੁਣ ਧੁਨ ਮੁਨ ਜਨ ਖਟ ਬੀਤੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਨਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ 6 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ 6 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਥ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਵਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਿਨ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲਿਟਰਲੀ ਅਸੀਂ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 6, 3, 5, 7, 11, 14, 9 ਨਿੱਦਾਂ, 18 ਸਿੱਧਾਂ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਸਟੇਬਲ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨੀਕੀ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁ ਗੁਣ ਧੁਨ ਮੁਨ ਜਨ ਖਟ ਬੀਤੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਿਛ ਲਾਇਕੀ ਰੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਆਖਰੀ ਪਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਖਾਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨੀਕੀ ਜੀ ਕੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਲ, ਵਿਖਿਆ ਰੂਪੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਬਿਖਾਰੀ, ਨਿਰਾਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ, ਅਪਾਰੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ, ਸਹਿਜਾਰੀ
ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, सहज आ जान वाली अकल, भिखारी निरारी अपारी सहजारी, साध संग नानक पी खीरे। ये सारे चंगे चंगे गुणा का असेंस अमृत सच की संगत विच पी की मीनस पीता जाता है। इस करके वर्च्यूज़ का संग करिया कर। वर्च्यूज़ के संग दे नाल साडियां हैबिट्स, साडे एटीट्यूड ठीक होंदे। वर्च्यूज़ का संग करके अपने आप एक एक ऑर्गन नूं उसका सुनिया जदों मेरा मन देंदा है, अपनी मन की मत दा पॉइजन, मन की मत दा डिस्ट्रक्टिव आइडिया, अपने ईवल थॉट्स, जम बुद्धि वाला डीमन थॉट्स नूं छड्ड दिंदा है ते सतगुर दी मत दा अमृत पींदा जाता है। इहदा मतलब सानूं सच दी संगत करनी चाहिदी है। सच की संगत नंबर ऑफ पीपल की संगत नूं नहीं कहते ने। वॉकिंग अलॉन्ग विद द पीपल, सिटिंग विद अमंग द पीपल इज नॉट कॉल्ड संगत। बहुत बारी मैं डिस्कस किया है कि मैनू बचपन विच याद है साडे घरां दे 3-4 मुहल्ले पिछे प्रभात फेरी आ रही होंदी सी और मेरे मदर कहते सी उठ प्रभात फेरी आ रही है। फिर कहते सी प्रभात फेरी नाल वाली गली च आ गई है। फिर उसकी वॉल्यूम उच्चा नज़र आना शुरू होंदा सी, महसूस होंदा सी देख साडी गली च आ गई है और प्रभात फेरी साडे घर दे अगों लंघ रही है। जो प्रभात फेरी होर अगे चली जाती सी तो कहते सी उठ के प्रभात फेरी मीनस संगतां दे दर्शन ही कर लै। सस ने जी लोकां नूं देखना संगत दर्शन नहीं होंदा। पर सानू यही भुलेखा है, लोकां विच चले जाओ, लोकां नूं मिल लो, लोकां नाल नगर कीर्तन विच टुरी जाओ, लोकां दे नाल लंगर छक लो, लोकां नाल बैठ जाओ, लोकां नाल उठ जाओ। इनू संगत नहीं कहते ने। सतगुर बाजों संगत ना होई। जदों मैं सुरत करके सतगुर दी मत नूं सुनदा, इनू संगत करना कहंदे हन। विच संगत हर प्रभ वसै जियो। संगत विच रब जी वसदे ने नहीं, संगत विच वर्च्यूज़ की गल की जाती है। केवल वाइसिस छड्डण की गल की जाती है संगत विच। सो जिस संगत विच बैठ के मैनू वाइसिस दियां गल्लां करनियां पैन, वाइसिस की प्रैक्टिस होर रीइनफोर्स होंदी जाए, वो कुसंगत होंदी है, वो सतगुर की संगत नहीं होंदी है। सो अज दे शब्द विच असी सीखिया कि जे तू कोई गल सुननी ही है, वो वर्च्यूज़ नूं जीण वास्ते, चंगे गुणां नूं जीण वास्ते, जिहड़ा स्पिरिचुअलिटी का मैसेज मिलता है उन्होंने हर कथा कहते हैं। वो अंदर वास्ते रब जी की तेरी ज़मीर की आवाज़ होती है, उसनों सुनन की जाच सीखिया कर। और बाकी सब रस फिक्के होंदे ने, होर कित्थों मैसेज ना लिया कर। यह शब्द का राह है। और जेकर अंदर की आवाज़ सुननी सीख लो, रब जी की आवाज़ तुर की बाणी आई तीन सगली चिंत मिटाई, तो सानू चंगे चंगे गुण आ जाते ने और चंगे गुणा दे नाल साडा मन जीत जगजीत, साडे ऑर्गनस काबू आ जाते हैं। असी बैलेंस्ड परसनैलिटी बन जाते हैं, साडी पेशेंस और टॉलरेंस वध जाती है, साडा सबर ते संतोख वध जाता है, ते विख्या जैसे रस छुट जाते हैं। ते मोस्ट एक्सक्लूसिव अमृत रूपी सतगुर दी मत, सच दी संगत विच पीण दी, सीखण दी, अंदर वसाण दी आदत बन जाती है।